students, good morning. Hope to see you in this particular lecture and we will continue. Students, last time we have done something which was related to contingent contract. I had given you only the definition part of what was contingent contract. Let us understand this concept in details today. Yes. So we are going to cover up contingent contract today, but in details. So let me start with contingent contract. Everybody, I hope students you're writing and taking down all the notes is clear because it is very important. Fine. I told you regular basis पे जितने भी अपने लेक्चर हो रहे हैं प्लीज उसको रिकॉर्ड करो और उसको लिखते जाओ अपने नोटबुक्स में. एक डाउट वाला पूरा कॉन्सेप्ट अलग से मेंशन करके रखो so that whenever we meet back definitely we will sort out and discuss all those particular doubts whether physically or through virtually. Is it clear? So please come back. Today's topic is contingent contract and we will understand something which is related to contingent contract. Okay, so I want you to please focus and understand this concept of contingent contract out here. ये जो टॉपिक है अपने को इसमें तीन चीजें करनी है. एक तो डेफिनेशन करना है, फिर एसेंशियल्स करने हैं और फिर रूल्स करने हैं. So we have to cover up three things under contingent contract: the definition, the essentials and the rules. Is it okay? The topic is very easy for us to understand. You just have to focus and listen to what we are doing in this particular concept. Okay? Come back students. Definition. A contingent contract is a contract to do or not to do something. या तो करना है या तो नहीं करना है. If some event collateral to such contract, उससे रिलेटेड कुछ, जब रिलेटेड आता है तो उसको कोलैटरल बोलते हैं. कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, या तो वो हो सकता है या तो वो नहीं हो सकता है. बट आप भी जब आपके बुक्स में डेफिनेशन लिखोगे तो आपको भी ये चीज को हाईलाइट करना जरूरी है. इज इट ओके? तो क्या लिखेंगे? अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contract does or does not happen. या तो वो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. उसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि तुमको उस चीज के बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब तुम क्या हो? अनसर्टेन हो. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो जब तुमको उस चीज के बारे में कुछ पता नहीं है, तुम तो कंप्लीटली अनसर्टेन हो उस इवेंट के बारे में, तो फिर उसको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कहा जाता है. आर यू ओके? Now let us understand what are the essentials and what are the rules of contingent contract. Please check your question paper. अगर उन्होंने definition और rules पूछा है तो ये और ये चीजें लिखनी है, आपको essentials लिखने की जरूरत नहीं है. But अगर उन्होंने definition और essential पूछा है तो फिर आपको essential को elaborate करना पड़ेगा. Okay? So please come back. Let us understand what is essentials. Depends upon happening or non-happening of a future uncertain event. ये किस पे डिपेंड करता है? वो इवेंट हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है, तो वो पूरी तरह से फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, तो फिर उसको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, मतलब वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है. इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन. बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को नोट डाउन करने की है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन. इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए. तुमको अगर उस इवेंट के बारे में पहले से ही पता है तो फिर वो कंटीजेंट में नहीं आएगा. If I tell you if it rains we will stop with the lecture, is it clear? तो I am not aware और you are not aware actually बारिश होने वाली है. ठीक है? तो अपने को पहले पता ही नहीं है कि बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है. So that is event must be uncertain. Event must be collateral. वो तेरे इवेंट से रिलेट करना चाहिए. मैंने बोला कि बारिश गिरी तो लेक्चर नहीं होगा, अभी तेरे को बैठ के सुनने का है. Is it clear everybody? So if I tell you कि अगर बारिश हुई तो लेक्चर नहीं होगा, then it becomes a collateral event. Is it clear? क्योंकि वो लेक्चर और बारिश के इवेंट को रिलेट कर रहा है एक दूसरे से. Is it clear? तो एक इवेंट दूसरे इवेंट को कहीं ना कहीं तो रिलेट करना चाहिए, इसीलिए उसको बोलते हैं इवेंट मस्ट बी कोलैटरल. तो बेटा ये तीन एसेंशियल्स आपको फुलफिल करने पड़ेंगे जब आप लोग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो मेरे साथ में. एक बार डेफिनेशन को वापस से रिवाइज करेंगे. A contingent contract is a contract to do or not to do if some event collateral to such contract does or does not happen. Essentials: it depends upon happening or non-happening of future uncertain event. Event must be uncertain. Event must be collateral. Is it clear everybody? मतलब वो कहीं ना कहीं वो दूसरे पार्टी से को रिलेट करना चाहिए. So event must be collateral. Rules देखें, बहुत easy है. So we will understand the rules now so that the concept is more clear. I want you to get down this.
तो फर्स्ट रूल से एग्जाम्पल के साथ करते हैं ताकि आपको बराबर से पता चले। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब है एक्स जो है वो गुड्स मंगा रहा है वाई से, ठीक है। एक्स जो है वो इंडिया में है और वाई जो है वो अमेरिका में। एक्स ने वाई से गुड्स मंगवाया है। एक्स कहां पर है? इंडिया में, आई फॉर इंडिया। वाई कहां पर है? अमेरिका, ए मतलब अमेरिका। अभी गुड्स कैसे आने वाला है? गुड्स बाय शिप आने वाला है, जहाज से आने वाला है। इज इट क्लियर? तो अगर अमेरिका से इंडिया शिप आता है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। शिप अगर इंडिया पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। हम लोग एक काम करते हैं, तो वो शिप का डायरेक्शन यहाँ पे बता देते हैं सो दैट द कॉन्सेप्ट इज मोर क्लियर। आर यू गेटिंग दिस एवरीबॉडी? तो अगर अमेरिका से इंडिया शिप पहुंचेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप बोलोगे मिस व्हाट इज पहुंचेगा? पहुंचेगा ही ना, तो क्या प्रॉब्लम होगा? बेटा वो पानी से आ रहा है तो तुमको नहीं पता कि वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। आर यू गेटिंग दिस एवरीबॉडी? बिकॉज अगर वो सिंक हो गया बीच में, कहीं पे भी संक हो जाता है शिप अगर बीच में, तो वो इंडिया नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब ये तुझे नहीं पता, ना शिप वाले को पता, ना मुझे पता, तो ना इंडिया को पता, ना अमेरिका को पता, ना शिप वाले को पता, ना किसी और को पता, तो वो क्या हो जाता है? अनसर्टेनिटी। ओके, सो इफ द गुड्स आर कमिंग फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया, if the goods reaches India, then it is a contingent contract. Is it clear everybody? Contract contingent on happening of an event. तो ये किस पे फोकस कर रहा है? Happening of an event पे फोकस कर रहा है। Okay? Now the second one, उसका उल्टा करने का, क्या करने का? Contract contingent on non-happening of an event. Non-happening of an event का मतलब है शिप पहुंचा ही नहीं अमेरिका से इंडिया। Is it clear everybody? तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहुंचना चाहिए। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है? नहीं पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो बेटा अगर ये नहीं पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और ये पहुंच गया सेकंड वाले पॉइंट में तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं फर्स्ट दो पॉइंट को साथ में लेती हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन आउट हियर। फर्स्ट पॉइंट में अमेरिका से इंडिया शिप पहुंचना चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेकेंड वाले पॉइंट में अमेरिका से इंडिया शिप नहीं पहुंचना चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। आर यू गेटिंग इट? फर्स्ट वाले में पहुंचना चाहिए, दूसरे वाले में नहीं पहुंचना चाहिए। पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। आर यू गेटिंग दिस एवरीबॉडी? तो यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। आर यू गेटिंग दिस एवरीबॉडी? थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर इतना ज्यादा नहीं। आप जरा ध्यान से सुनो, बार-बार वीडियो देखो so that you understand what teacher is trying to tell you. Is it okay? So the first rule says contract contingent on happening of an event and contract contingent on non-happening of an event. Is it okay? Event deemed to be impossible and future conduct of living person. बोलेगी कि मिस ये तो पूरा कंफ्यूजिंग है। बेटा यही सबसे ज्यादा इजी है। जरा सुन, event deemed to be impossible and future conduct of living person. जरा ध्यान दो यहाँ, फोकस करो। ए बी को पैसा देगा, ए बी को क्या देगा? पैसा देगा। ए बी को पैसा देगा अगर बी ने सी से शादी की तो। आर यू गेटिंग दिस एवरीबॉडी? ए बी को पैसा देगा, सपोज यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं 10,000 रुपया, अगर बी ने सी से शादी कर ली तो। बट बी सी से शादी करता उससे पहले सी ने डी से शादी कर ली, क्या हो गया? इम्पॉसिबल। इज इट क्लियर? व्हाई इम्पॉसिबल? बिकॉज बेटा ए बी को तभी पैसे देने वाला था जब बी सी से शादी करता, पर सी ने तो डी से शादी कर ली। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो बोलोगे कि मिस अभी क्या? अभी ये कि अगर आगे चल के ये चारों अगर जिंदा है और सी और डी के बीच में डिवोर्स हो जाता है तो बी को चांस है सी से शादी करके ये 10,000 रुपए लेने का। समझा बेटा? ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो चारों जिंदा होने चाहिए, ये दोनों का डिवोर्स होना चाहिए और फिर ये इससे शादी करना चाहिए तो इसको ये 10,000 रुपए मिलेगा।
ये है तेरा पॉइंट नंबर 3, इवेंट डीम्ड टू बी इम्पॉसिबल एंड फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। मतलब फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन पे ये पता चलेगा कि ये प्रॉपर है कि नहीं। आर यू गेटिंग दिस एवरीबॉडी? तीसरा समझ में आ गया? आई नो यू विल अंडरस्टैंड। गुड। अंडरस्टैंड द फोर्थ पॉइंट, कंटिंजेंट इवेंट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम। बेटा ये वाला एग्जांपल वापस, y से अगर x गुड्स लेता है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? मतलब अमेरिका से इंडिया अगर गुड्स आ रहा है बट एक साल में आ रहा है, विद इन 1 ईयर, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा विद इन अ फिक्स टाइम। ये पूरा एग्जांपल एज इट इज आपको फोर्थ पॉइंट में यूज करना है, सिर्फ अभी इसमें टाइम पीरियड ऐड करना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज फोर्थ पॉइंट। तो आपको समझ में आया ये 1 ईयर वाला कॉन्सेप्ट कौन से पॉइंट से आया है? फोर्थ पॉइंट से आया है। तो अगर अमेरिका से इंडिया शिप पहुंचा और एक साल में पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिफ्थ वाले पॉइंट में एक साल में नहीं पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट अपोजिट है, वैसे फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट एक दूसरे से अपोजिट है। इज इट क्लियर? मतलब एक साल में शिप पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फिफ्थ वाला पॉइंट होता है नहीं पहुंचा एक साल में तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो कंटिंजेंट इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स्ड टाइम। बेटा लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले आई वांट टू रिवाइज ऑल द रूल्स वंस अगेन सो दैट यू डोंट हैव एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज व्हाइल यू आर सॉल्विंग इट। ओके, shall we start? Please come back with me. These are the rules of contingent contract. So let us understand the rules of contingent contract. Contract contingent on happening of an event. Y अमेरिका में है और X इंडिया में है, तो अमेरिका से इंडिया अगर गुड्स पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अमेरिका से इंडिया अगर गुड्स नहीं पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इवेंट डीम्ड टू बी इम्पॉसिबल एंड फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। ए बोलता है बी को मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, उसके बदले में तू सी से शादी कर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सी ने उससे पहले डी से शादी कर ली, अभी तो फिलहाल इवेंट इम्पॉसिबल हो गया है, और अगर आगे चल के फ्यूचर में चारों जिंदा है, सी और डी का डिवोर्स हो जाता है, तो सी बी से शादी करके ए से वो 10,000 रुपए ले सकता है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सो दैट इज इम्पॉसिबल एंड फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। कंटिंजेंट इवेंट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम। यहाँ पे अमेरिका से इंडिया शिप आया, वो भी एक साल में आया, तो उसको इवेंट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम बोलते हैं। उसका अपोजिट कंटिंजेंट इवेंट नॉन हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, मतलब ये गुड्स एक साल में नहीं पहुंचा तो फिर वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। कंटिंजेंट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटिंजेंट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। ए ने बी को बोला मैं तेरे को 10,000 रुपया दूंगा, तू सी से शादी कर। आप बोलोगे कि मिस वापस वही? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। ए ने बी को बोला मैं तेरे को 10,000 रुपया दूंगा, तू सी से शादी कर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? और वही टाइम पे सी का डेथ हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, फ्यूचर में भी नहीं हो सकता है क्योंकि सी की डेथ हो गई। यहाँ पे कैसा बेटा, अगर फ्यूचर में वो लोग जिंदा है तो भी पॉसिबल है, एक उम्मीद है, पर यहाँ पे तो उम्मीद ही खत्म हो गई है बिकॉज सी की डेथ हो गई। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अब बी चाहे तो भी ये नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर एवरीवन हियर? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट? सो कंटिंजेंट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। समझ में आ रहा है? एक बार वापस से मैं बोर्ड से थोड़ा साइड हट जाती हूँ, आप पूरा बोर्ड एक बार देख लो और फिर मैं वापस आऊंगी और हम लोग वापस से रिवाइज करेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई गिव यू ओनली 1 minute to check the board, pause, write it down. Is it clear everybody? I come back, we definitely revise these things once again. तो इजी है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट।
तो बेटा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमको और कुछ पढ़ना ही नहीं है, यही सारी चीजें पढ़नी है। तो तुमको डेफिनेशन आना चाहिए, तुमको एसेंशियल्स आना चाहिए और तुमको रूल्स आना चाहिए। अगर ये तुमको आ गया मतलब तेरा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डन डन एंड डन। इज इट क्लियर? So please check with me the contingent contract once again, a last revision, so that you do it very well. Definition: a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Essential: it depends upon happening or non-happening of future uncertain event. वो depend करता है, event हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। बेटा जो इवेंट सर्टेन है, सर्टेन मतलब जिसके बारे में तेरे को पहले से ही पता है, वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। मतलब वो इवेंट क्या होना चाहिए? अनसर्टेन होना चाहिए। इवेंट मस्ट बी कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब है बारिश और लेक्चर एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए। मिस ने बोला था बारिश हुई तो मिस लेक्चर कैंसिल करेगी, सो वो दूसरे से एक दूसरे से वो कोरिलेट करता है, सो इसीलिए इवेंट मस्ट बी कोलैटरल। रूल्स: कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अमेरिका से शिप अगर इंडिया में पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं पहुंचा तो नहीं होगा। ये फर्स्ट पॉइंट। कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब है अमेरिका से इंडिया शिप नहीं पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इज इट क्लियर? इवेंट डीम्ड टू बी इम्पॉसिबल एंड फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। आई थिंक ये वाला पॉइंट तुम्हारा फेवरेट होगा। बोलो ये कौन है? ए ने बी को कितना पैसा देगा? कम ऑन बोलो मेरे साथ में, 10,000 रुपया। क्यों देगा? सी से शादी करने के लिए। सी ने क्या किया? डी से शादी कर ली। अभी इवेंट क्या हो गया? इम्पॉसिबल। पॉसिबल है अभी भी आगे चल के? यस इट इज पॉसिबल। बेटा ये कभी पॉसिबल होगा? जब ये चारों जिंदा है। इज इट क्लियर? अगर ये चारों जिंदा है तो अभी भी ये इवेंट पॉसिबल हो सकता है। तो कल को अगर सी और डी का डिवोर्स हो गया, बी ने सी से शादी कर ली, तो बी अभी भी ए से 10,000 रुपए रिकवर कर सकता है। ओके, इजी। आई थिंक दैट हैज बिकम योर फेवरेट एग्जांपल। कंटीजेंट इवेंट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम। कंटीजेंट इवेंट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम का मतलब है एक्स वाई, इंडिया अमेरिका, शिप पहुंचा बट एक साल में। इज इट क्लियर? तो अगर एक साल में पहुंचा तो द कॉन्ट्रैक्ट विल टेक प्लेस, नहीं पहुंचा तो द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट टेक प्लेस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो इन फोर्थ एंड इन फिफ्थ पॉइंट, इट शुड कम बैक विद इन अ स्पैन ऑफ 1 year, then the contract will happen. And the sixth point says it should not come back within the span of 1 year, then the contract is going to take place. Okay? Contingent event becomes impossible. Impossible का मतलब है A ने B से शादी करना था, is it clear? I'm sorry, A B को पैसा पे करना था, उसके वजह से B C से शादी करने वाला था, but at the time of the contract C dies, तो अभी the contract has become impossible और अभी contract नहीं हो सकता। Is it okay? I think this is contingent contract और इससे ज़्यादा आपको contingent contract में और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। Is it clear everybody? Students, the topic is very easy. एक दो बार वीडियो देखोगे कंटिन्यूअसली तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पॉइंटर समझ में आ जाएंगे और उसको इजी। बेटा आपको एग्जाम में ये चीज ऐसे नहीं लिखनी है। सपोज इफ दे आस्क यू डिफाइन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स, तो आप कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लिखोगे और फिर उसके एसेंशियल्स के एक एक पॉइंट को इलैबोरेट करोगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? मतलब इवैल्यूएट करोगे, आप हर पॉइंट में एग्जांपल देके आंसर को बढ़ा सकते हैं। रूल्स के साथ भी वही है, रूल्स में हर पॉइंट में मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो आपको भी आपके आंसर शीट में हर पॉइंट के साथ एग्जांपल कवर अप करना पड़ेगा। एक दो लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन करो और फिर थर्ड फोर्थ लाइन में उसका एग्जांपल बता दो। तुम लॉ के पेपर में जितने ज्यादा एग्जांपल्स कवर अप करोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा, उतना याद रखो। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सिर्फ एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ भर भर के लॉ क्वालिटी मांगता है बेटा, एंड लॉ इज वन ऑफ द टेक्निकल पेपर, इट इज नॉट द थ्योरी पेपर। Is it clear everybody? So when it talks about technical, आपको उसको present भी technically करना है। Is it clear? Definition, essentials, rules with examples systematically, and then automatically your score increases. Is it clear? ये presentation follow करो, definitely you are going to have a very good score in your exams. Is it clear everybody? If
if you have any doubts, I told you can jot it down. Is it clear, everybody? And then we shall come together and discuss through virtually or through physically, however it is possible.